اگر پی ڈی ایم کوئی تصادم چاہتی ہے اور کوئی اس قسم کا رویہ چاہتی ہے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ میں ان کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی حرکت سے اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ ذمہ دار ہوں۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک سائڈ پہ اور ہم اکیلے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے جو ہے نا ایک کھلی کتاب ہے کہ دیکھیں کہ ابھی ان کی کیا پوزیشن ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ پی ڈی ایم نے 24 تاریخ کو اپنا کوئی اعلان کیا ہے۔ مجھے اس پہ بہت افسوس ہے، یہ جان بوجھ کر جو ہے نا تصادم چاہتے ہیں۔ ہم کیٹیگریکلی ہمارا لیڈر بھی ہر وقت یہ کہتا ہے کہ ہمارا پرامن ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہمارے رائٹس ہیں اس کے مطابق ہم اس کی حد تک ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے۔ یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر پی ڈی ایم کوئی تصادم چاہتی ہے اور کوئی اس قسم کا رویہ چاہتی ہے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کریں۔ میں ان کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی حرکت سے اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ ذمہ دار ہوں گے۔ ہم ایک صوبے کے لوگ ہیں، ایک لوگوں کے ساتھ ہمارے ایک کلچر ہے، ہمارا ایک پرانا بہت ہم چھوٹا صوبہ ہے، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی آپس میں اس قسم کی تشدد ایک دوسرے کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ تو میں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور بہرحال ہم نے ہر طریقے سے انشاءاللہ پہنچنا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں روکیں گے یا کوئی اس قسم ماحول پیدا کریں گے تو یہ غلط فہمی ہے۔ یعنی آپ نے تو دیکھا کے پی کے میں 4 قومی اسمبلی کی الیکشن ہو گئے ہیں، اور چاروں قومی اسمبلی میں الحمدللہ ہماری صوبے کے عوام نے طارق صاحب کے اوپر اور طارق صاحب کی لیڈر کے اوپر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک سائڈ پہ اور ہم اکیلے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے جو ہے نا ایک کھلی کتاب ہے کہ دیکھیں کہ ابھی ان کی کیا پوزیشن ہے۔ اور ہم تو سمپل بات کر رہے ہیں کہ آئیں الیکشن کریں، آپ سارے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لڑیں، اور ہم جو ہے نا اگر آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے تو آپ حکومت کریں، اگر ہمیں مینڈیٹ ملتا ہے تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں حکومت دیں، ہم تو کہتے ہیں الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ تھینک یو۔ بس سر یہ بتائیں کہ حکومت یہ کہہ رہی کہ پرویز خٹک صاحب اور فواد چودھری صاحب مذاکرات کے لیے ان سے رابطہ کریں، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو آڈیو آئی ہے گنڈاپور صاحب کی، اس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیں۔ دیکھیں، میری ملاقات تو کوئی نہیں ہو رہی، پہلے ہوتی تھی، ہمارے دوست ہیں ویسے ہی ہم ملتے رہتے ہیں، لیکن ابھی جو سیاسی ملاقات جو آئندہ دھرنے میں کیا ہونا ہے، آئندہ کیا، وہ ملاقات بالکل کوئی نہیں ہو رہی۔ اور وہ جب آپ ٹیپ دیکھتے ہیں اس کا آڈیو، آپ جو دیکھتے ہیں وہ بات کرتا ہے، اس کا جواب آتا ہے، اس کو بات کرتا ہے وہ جواب، اس کا مطلب ہے کہ فکس چیز ہے، ہیلو ہاں، یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کٹا ہے، ایک بات سے ادھر ڈال دی، اس کی بات ادھر ڈال دی، تو یہ کنفیوژن، یہ جان بوجھ کے ایک ملک میں ایک ڈراؤنا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ گھبرا جائیں گے۔ ان کو پتہ نہیں، آج کی عوام گھبرانے والی نہیں، تعلیم یافتہ بچے جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے لڑنا بھی جانتے ہیں، اپنا راستہ بھی نکالنا جاتے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں تم بہت پرانے زمانے میں رہتے ہو، آج کے بچے ہمارے جوان بہت آگے نکل چکے ہیں، اور عوام آپ سے بہت آگے نکل چکی ہے، آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ سر آپ یہ بتا دیجیے کہ کیونکہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب رہے ہیں، آپ کے پاس منسٹری ایسی تھی، تو عمران خان جو بیان دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ ایک چیز پہ آج پائے گی؟ دیکھیں، عمران خان کوئی ایسی بیان نہیں دے رہا ہے، عمران خان یہی بات کرتا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، سب کچھ نظر سب کو آ رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیسے آئیں، تو وہ یہی کہتا ہے کہ فیئر یہی ہوگا کہ سب کو ایک آگے موقع دیا جائے، الیکشن ہو جائے تاکہ ایک مقابلہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ماحول اس ملک کا بہت ایک سمجھ سے سب کی باہر ہے کہ کل کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر ماحول ٹھیک کرنا ہے، اکانومی ٹھیک کرنی ہے، ملک میں خوشحالی لانی ہے، ملک میں دنیا کا اعتماد بحال کرنا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس اس سے اچھا راستہ ہو تو بتا دیں۔ ان کے پاس تو اکانومی ٹھیک کرنے کا مجھے تو نظر نہیں آتا، میں تو بڑی دور سے دیکھتا ہوں اور بہت لوگوں سے ڈسکشن کرتا ہوں، مجھے تو نظر نہیں آتا کہ اس ماحول میں چاہے یہ جتنی مرضی کر لے، اس ماحول میں ملک کی اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی۔ ہم پر کوئی اعتماد نہیں کر رہا، کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، وہ دیکھتا ہے کہ میں انویسٹ کروں گا تو کل اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس ملک کا
मुस्तकबिल का कल का किसी को नहीं पता, तो माहौल को ठीक रखना पड़ेगा अगर मुल्क से मोहब्बत है। खट्टर साहब क्या नज़र आ रहा है आपको मुल्क की सियासी सूरत हाल? मार्च के इस्लामाबाद तक पहुंचने तक कुछ होता नज़र आ रहा है कि नहीं? मार्च नहीं, मुझे इन लोगों से नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारे तो दोस्त हैं, सियासी लोग हैं, मिलते रहते हैं, गपशप लगाते हैं। तो एक दो दोस्तों से मेरी बात हो रही थी वहाँ पे, तो मैंने कहा ये टाइम इलेक्शन का दे दो, इलेक्शन लड़ते हैं। कहते हैं हम पागल हैं, हमें नज़र आ रहा है तुम हमसे जीत रहे हो। वो तो खुल के कहते हैं कि हम हार रहे हैं तुमसे, तो जो बंदे को नज़र आता है मैं हार रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये खुशी से मुल्क की खातर अगर इनमें पाकिस्तान से मोहब्बत है शायद दे दें, अदरवाइज़ खुशी से नहीं देंगे। साहब ये बताएं कि हुकूमत ने अदालत ने इजाज़त दी है कि आप लोग मार्च कर सकते हो मौजूद दुनिया में, लेकिन आज राना सनाउल्लाह ने कहा कि नहीं, हमने हुकूमत की कोई इजाज़त नहीं। ये क्या तकरार? नहीं, हुकूमत का तो ये होता है ना कि कोर्ट ने तो कहा हुआ है कि आप यहाँ तक आ सकते हैं, वो एक फ़ैसला है, जनरल फ़ैसला है। लेकिन जो पार्टी वहाँ पर प्रोग्राम कोई करती है, जलसे जुलूस या जो भी, तो वो फिर डीसी के एडमिनिस्ट्रेशन से जगह की परमिशन लेते। एप्लीकेशन दिया हुआ है लेकिन अभी तक नहीं मिल जाता। जो तब्दीली जो मुल्क में आई है, ये एक आईनी तरीके के तहत ने अपने हक इस्तेमाल करके इस्तेमाल के जरिए आप लोगों की कौम को फारग किया था। अब आप जो मुकर्रर जो आईनी मुद्दत है उसके इंतज़ार क्यों नहीं करते, या ये सब कुछ आप इसलिए कर रहे हैं कि ये कोई 29 नवंबर को जो एक तब्दीली आने वाली है, किसी तरह उसमें अपना कोई आप रोल बना सकें अपने लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये माहौल ऐसा बन गया है, क्योंकि हमारा एहतजाज तो आज से नहीं है ना, अगर हम आज कह रहे हैं कि नवंबर में ये हो रहा है, हम तो पहले दिन से, जिस दिन से इमरान खान को उतारा गया, ये एहतजाज उसी दिन से जारी है और उसी दिन से हमारा डिमांड है कि इलेक्शन कराए जाएँ, क्योंकि ये इस मुल्क में जो हुकूमत बनी है ये डिलीवर नहीं कर सकती। ना इनकी पॉलिसी है, ना इनका प्रोग्राम है, ना लीडरशिप है, ना कोई उनको डायरेक्ट कर सकता है। हर पार्टी के लोग बैठे हैं, अपने अपने फैसले कर रहे हैं, सब ने अपनी दुकान खोली हुई है, बस वक्त गुजार रहे हैं, बाकी मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। आपके हवाले से बताया जा रहा है कि आपके ज़रिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहाँ तक हकीकत है इसमें और कहाँ तक? नहीं, अभी मेरा कोई रोल नहीं है। इमरान खान साहब ने साफ कह दिया कि रोल इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को होगा, क्योंकि वो आईनी सदर है और अगर वो इकट्ठा कर सके तो कर ले, बाकी किसी का कोई रोल नहीं। लॉन्ग मार्च के स्केड्यूल में तब्दीली की गई है और अपने पहले शुरू किया गया, उसके बाद ये तासुब और पकड़ गया और हुकूमत भी ये कह रही है कि लॉन्ग मार्च का असल हदफ जो है वो हुकूमत और इदारे पर दबाव डालना है, अपनी मर्जी का उसकी तैयारी है। नहीं जी, पहले तो नहीं, हमारी नज़र में तो बहुत लेट हो गया, क्योंकि सारे हमारे जितने वर्कर्स हैं सारे मुल्क के, उनका डिमांड था कि जल्दी करो। मेरे ख्याल में लेट शुरू हुआ, इससे बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आमद दुरुस्त आमद। और आप देख रहे हैं, सारे मुल्क को देख रहे हैं, पंजाब को देख रहे हैं। ऐसा मैं बहुत सियासत की है, मैंने भुट्टो के टाइम में मैं ऐसे लोगों को निकलते नहीं देखा। उस वक्त भी मुझे याद है हम गाड़ियाँ लेकर जाते थे, बड़ा लोगों को लेकर। अब कुछ और ही लोग खुद ही उठ गए, अब कौन रोकेगा? नहीं, हमारा फौजी आदमी किसी का उम्मीदवार नहीं हो सकता। कोई बेवकूफ़ होगा जो एक जनरल कहेगा मेरा उम्मीदवार है, वो अपने इंस्टीट्यूशन है और वो उसमें कोई मदाखलत नहीं कर सकता। ये बताइए कि इससे पहले जो मुश्ताक साहब वक्ती राह से हुई। बात आते हुई कानून साजी के मुताबिक, देखिए हमारे हाथ, मैंने पहले क्लियर किया, हमने हमारे किसी हाथ नहीं बांधे थे, हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन था, एक अंडरस्टैंडिंग से काम हो रहा था। हमें जो मसला था, आइन में कई कानून साजियाँ करनी ज़रूरी है, क्योंकि इतने यहाँ पर इन्होंने आइन को ऐसा बिगाड़ के रख दिया कि ना अदालतों में इंसाफ मिलता है, ना सियासत में इंसाफ मिलता है, हर चीज़ में रुकावट है। और अब तो खैर बेड़ा गर्क ही कर दिया, जो इन्होंने एहतसाब ही ख़त्म कर दिया, चोरी खोल दी। तो ये बहुत सारी चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, बहुत सारे हमारे चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी। उसके लिए बहुत ताकतवर हुकूमत की ज़रूरत है। अगर मुल्क ने एक अच्छा मैंडेट किसी पार्टी को 2/3 का दे दिया तो इंशाल्लाह ये मुल्क में बहुत चेंजेस हो सकते हैं, अदरवाइज़ बड़े मुश्किलात हैं। खट्टर साहब, 30 अक्टूबर 2016 को भी आपने एक एहतजाजी मुजाहिरा किया था, उसमें आपसे ये और उस एहतजाजी मुजाहिरे को भी आप ही लीड कर रहे थे, जहाँ पर आप पर्चे लगी। नवंबर के महीने में क्या हो जाता है एकदम से? नवंबर के महीने में ये एहतजाज एकदम शुरू हो जाता है। वो 25 की बात कर रहे हैं?
मैं नहीं, वो पुराने वाले दो आते में हैं। भी आपने एहतजाज किया था जब आप पर शिलिंग हुई तो कंटेनर वगैरह लगा कर बंद किया गया, वो भी 30 अक्टूबर ही था। अब 4 नवंबर को है, तो लोग बता रहे हैं नवंबर में क्या ऐसा होता है कि आप लोगों की एकदम एहतजाज ज़्यादा आ जाता है? अच्छा, उस वक्त तो मुझे याद नहीं है कि नवंबर के साथ कोई ताल्लुक था, वो तो अभी 1.25 साल रहता था, ऐसा मसला नहीं। तो वो शरीफ रिटायर हो गई, मुझे एग्जैक्ट वो वजह थी, पता नहीं, मैं भूल गया, रियली मैं भूल गया हूँ। वैसे ये एक बड़ी गलतफहमी है ना, हमारी लीडरशिप हमने कैटेगरिकली कहा है कि ये फौज की अपनी सवाबदीद है कि वो जिसको चाहे या जो उसका जो प्रोसीजर है, हमारी पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये गलत इंप्रेशन जा रहा है कि हम कोई अपना चीफ नहीं चीफ किसका नहीं होता, वो एक इदारे का होता है, उसके जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर उसको अडॉप्ट किया गया, इस पर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक मिनट मैं अपनी क्लियर करूँ कि मैं काफ़ी टॉक्स में रहा हूँ। हमने एक क्लियर मैसेज उनको दिया हुआ है कि हमें किसी पर एतराज़ नहीं है, जो भी नॉमिनेट होता है होए, ये एक सिस्टम है, वहाँ से रिकमेंड होता है, और जो भी जनरल है पाकिस्तान का वो बेहतरीन जनरल है, बेहतरीन डिलीवर करेगा, मुल्क दुश्मन तो नहीं हो सकता। तो हम तो बड़ा क्लियर मैसेज दे चुके हैं, लेकिन एक बस प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हमने ये काम नहीं, क्यों नहीं, हमेशा होता है, होगा, क्यों नहीं होगा। सर ये बताइए कि आप से पहले मुज़ाकरात का बराह हिस्सा रहे हैं जो आर्मी चीफ के साथ, अब तो BPI ने कहा है कि हयात आपको ख्वाजा साहब को जो ऑफर की गई थी एक्सटेंशन, तो आप भी क्योंकि गवाह है उसके इमरान खान साहब से वो तरमीम आई है, लेकिन आप बता सकते हैं कि वो आया ऐसा था या नहीं? देखिए, DGI की बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन देखिए आप एक किताब को सामने, आइन को सामने रख कर देख लें, आइन में कोई कानून इख्तियार किसी के पास नहीं है हयात का। एज का हो गया कि 64 एज तक एक्सटेंशन, या जितना भी है मैं एग्जैक्ट, या 64 65 कि वहाँ तक एक्सटेंशन हो सकती है, और हयात का है ही नहीं। अब उन्होंने कैसे कह दिया, मैं कभी उनसे पूछूंगा। अनकॉन्स्टिट्यूशन आप पर कैसे हो सकती है? हम कैसे कर सकते में नहीं है तो हैं? कैसे हो सकती है? हम इतने सियासी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अकल अल्लाह ने दी है, किस तरह कह सकते हैं हयात? गलत फहमी होगी या अल्फाज में गलत फहमी होगी। साहब क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसने कहा कि इमरान ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा 3 नाम मैं देता हूँ और 3 नाम आप दे आर्मी चीफ के लिए। ऐसी वो तो खान साहब ने क्लियर कर दिया कि खान साहब उसको मैसेज भेजेगा। भाई हमारा तो इसमें है ही नहीं, हम तो अगर यहाँ अपोजिशन लीडर भी होता फिर भी वो इख्तियार नहीं है, तो खान साहब कभी ऐसा मैसेज नहीं भेजा उन्होंने। देखिए, रोज़ कोई ना कोई शोशा आएगा, रोज़ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आएगा, लेकिन लोग अब बेवकूफ़ नहीं है, जो मर्जी ये कहें। ठीक है, साहब ने कहा है कि बैकडोर पार्टी हो रही है और वो किस तरह से हो रही है, अगर आपको मालूमात है? तो मेरी मालूमात में रियली नहीं है, इस वक्त कोई बैकडोर बात नहीं हो रही। खटक साहब, सिर्फ आखिरी सवाल है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने जो मरासला भेजा है सूबों को कि तमाम चीफ सेक्रेटरीज को कि उनके ऑफिसर जो है वो वफाक की जानिब से जो हिदायत दी थी उन पर अमल बरामद करें, इसका मतलब डायरेक्टली जो DCs हैं और इसके अलावा जो PSP ऑफिसर, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो ऑफिसर सूबे के होते हैं, ये इख्तियार सूबे का होता है, चीफ मिनिस्टर का इख्तियार होता है। आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक बिल्कुल अमल करेंगे। अगर वो गैर कानूनी गैर आइनी ऑर्डर करेंगे कभी अमल नहीं करेंगे, ना हमारी बात मानेंगे ना उनकी मानेंगे। तो ये तो सूबे का इख्तियार है, प्लीज़ मदाखलत छोड़ दें और मुसीबतें ना खड़ा करें। ठीक है जी, थैंक यू।